ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور بلدیاتی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مخصوص نشستوں کے انتخاب کی۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ سٹی کونسل کراچی کی 121 مخصوص نشستوں پر انتخابات رواں ماہ متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ ضلعی تنظیموں کی سفارشات کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے نام پارٹی قیادت کو ارسال کر دیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم سی کی تمام مخصوص نشستوں پر کاغذات جمع کرانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے بھی ٹاؤن کونسلز اور سٹی کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں جمع کرنی ہے۔ پہلی مرتبہ خواجہ سرا اور خصوصی افراد کے لیے بلدیاتی کونسلز میں نشستیں مختص کر دی گئی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو ملیں گی۔ بلدیہ عظمیٰ سٹی کونسل کراچی کی 121 مخصوص نشستوں پر انتخابات رواں ماہ متوقع ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ ضلعی تنظیموں کی سفارشات کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے نام پارٹی قیادت کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی تمام مخصوص نشستوں پر کاغذات جمع کرانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے بھی ٹاؤن کونسلز اور سٹی کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں جمع کر لی ہیں۔ پہلی مرتبہ خواجہ سرا اور خصوصی افراد کے لیے بلدیاتی کونسلز میں نشستیں مختص ہیں، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون کو ملیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ 15 جنوری کو شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے۔ یہ سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں جس میں اب تک میئر کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن بلدیہ عظمیٰ سٹی کونسل کراچی کی 121 مخصوص نشستوں پر انتخابات رواں ماہ متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ تنظیموں کے سفارشات کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے نام پارٹی قیادت کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تمام مخصوص نشستوں پر کاغذات جمع کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی ٹاؤن کونسلز اور سٹی کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں جمع کر لی ہیں۔ پہلی مرتبہ خواجہ سرا اور خصوصی افراد کے لیے بلدیاتی کونسلز میں نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ شہر کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ یہاں کے عوام جسے چاہیں گے وہی میئر آئے گا۔ جو بھی میئر بنے گا ہم اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے اگلے مرحلے کی طرف جلد جائے۔ الیکشن کی تاخیر میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، پہلے ہو جاتے تو ہم اور بھی زیادہ سیٹیں لیتے۔ اگر ایم کیو الیکشن میں حصہ لیتی تو ہماری اس سے بھی زیادہ سیٹیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہو۔ یہاں کے عوام جسے چاہیں گے وہی میئر آئے گا۔ جو بھی میئر بنے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے اگلے مرحلے کی طرف جلد جائے۔ الیکشن کی تاخیر میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، پہلے ہو جاتے تو ہم اور بھی زیادہ سیٹیں لیتے۔ اگر ایم کیو پاکستان الیکشن میں حصہ لیتی تو ہماری اس سے زیادہ سیٹیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں جو جیتے گا وہ میئر بنے گا، جو بھی میئر بنے بعد میں اختیارات کا رونا دھونا نہ کرے۔ کہنے لگے میری تو خواہش ہے پیپلز پارٹی کا میئر لگے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سنبھالا تھا اور فرق صاف نظر آیا۔ وہ ہر ایک کہتا ہے، ہمارے جو دشمن ہے، سیاسی دشمن اور بھی ہے، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیوچر بھی وہی نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو کیمرے لگا کر نام کا نہیں بلکہ حقیقی معنی میں سیف سٹی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کل جو پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں ایک دہشت گرد واقعہ ہوا ہے، جس میں جہاں تک مجھے صبح تک پتا تھا 88 ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس میں 50 سے اوپر لوگ اس وقت اسپتال میں اور کچھ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کو کلیئرلی کہوں، ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈپلوائے کر دوں اور اس کی رزلٹ کوئی نہ آئے، وہ میں نہیں چاہتا۔ تو میں نے
اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلوشن آئے وہ سلوشن اس شہر کے لیے بہتر ہو۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کے خلاف سمجھا جاتا تھا، جبکہ ہم نے کراچی اور حیدرآباد 2 الگ الگ مرحلوں میں الیکشن کرانے کی تجویز دی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ کامیابی اس کے کام کرانے پر ملی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کی خواتین مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ کراچی میں خواتین کے لیے پنک پیپلز بس سروس کا آغاز آج سے ہوگا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن بس سروس کا افتتاح کریں گے، جبکہ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک 6 بسیں چلائی جائیں گی۔ پنک پیپلز بس سروس میں کنڈکٹر خواتین ہی ہوں گی۔ جس میں 22 سیٹس موجود ہیں اور 22 افراد یعنی 22 خواتین کے کھڑے ہونے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سیٹس کی ٹوٹل تعداد 50 کے قریب بن جاتی ہے، جن میں معذور افراد کی یہ سیٹس بھی شامل ہیں جو ڈسیبل پرسن یہاں پر آرام سے موجود بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک یہ سیٹ بھی ڈسیبل پرسنز کی ہے، یہ سیٹ معذور افراد کے لیے ہے جسے اس طرح استعمال کر کے بیٹھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جو معذور خواتین جو کھڑی ہو سکتی ہیں، جو زیادہ تر بیٹھ نہیں سکتی، یہ سیٹ ان کے لیے مخصوص ہے۔ اور اگر ہم اس بس میں موجود دیگر سہولیات کا جائزہ لیں تو اس بس میں مختلف مقامات پر آپ کو کیمراز نظر آئیں گے جو سیکیورٹی کی ایک اچھی گارنٹی ہے، اور جو خواتین آ رہی ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان کی ٹوٹل مانیٹرنگ کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر فائر الارم کے علاوہ یہ فائر ایگزٹ موجود ہے، اگر آگ یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو یہ اس میں کام آئے گی۔ اور اسی سہولیت کی اگر سہولیات کا ہم جائزہ لیں تو یہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور یہ ہیمر دیا گیا ہے جسے آپ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں اگر بس کے دروازے لاک ہو جاتے ہیں تو آپ اس ہیمر کو اتار کر ان شیشوں کو توڑ سکتے ہیں اور بس سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بات کریں گے، یہاں پر ایک بٹن دیا ہوا ہے، ریڈ بٹن، یہ سٹاپ کا بٹن ہے۔ اگر میں اس کو پریس کرتی ہوں تو یہ ریڈ لائٹ بلنک ہوگی، اور جس سے ڈرائیور کو انڈیکیشن مل جائے گا کہ اگلا اسٹاپ ہمارا ہے اور ہمیں وہاں اترنا ہے۔ اگر ہم بات کریں بس میں انٹر ہونے کی تو یہ مین دروازہ ہے اس بس میں آنے کا، جہاں سے آنے کے بعد یہاں پر سینسر دیے ہوئے ہیں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کا، جس کی ٹوٹل ڈیٹیل ڈرائیور کو پتہ چل جائے گی کہ کتنے افراد انٹر ہوئے ہیں اور کتنے ایگزٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ پر ایک دفعہ پھر اپنا کارڈ اسکین، جو اس دروازے سے داخل ہوں گے وہ یہاں پر اپنا کارڈ اسکین کریں گے، جس کی ڈیٹیل وہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہاں پہ ہم بات کریں اور دیگر چیئرز بھی موجود ہیں جو خدا نخواستہ نارمل خواتین ہیں جن کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، یہ ان کے بیٹھنے کے لیے سیٹ ہے۔
اور یہاں پر ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم ان سے بھی بات کریں ان سفری سہولیات کے حوالے سے تو وہ ہمیں تفصیلات بھی بتائیں گے کہ کیا کس طرح کی ان کو سفری سہولیات میسر ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ گورنمنٹ نے سندھ نے بہت اچھا کیا ہے جو خواتین کے لیے سہولت کا کام دیا ہے اور بہت اچھا ہے. موقع بھی ملا ہے ہمیں اس کی سفر کرنے کا اور جاب کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سندھ گورنمنٹ. ان کا یہی کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ خواتین کے لیے ایک الگ سے مخصوص بس بنائی گئی ہے جس میں وہ آرام سے عزت کے ساتھ سفری سہولیت کو مطلب سندھ حکومت کی جانب سے یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے. بہت ہی باعزت طریقے سے خواتین ایک اچھی ماڈل کالونی سے ہو کر ٹاور تک جا سکتی ہیں, باعزت طریقے سے بیٹھ کے جا سکتی ہیں بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی چک چک کے اور بغیر کسی مسئلے کے. جی سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کراچی کی گنجان آبادی میں زیر تعمیر ہے جس میں کئی محکموں کی انسٹالیشن موجود ہے. بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے لیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے الدین پارک میں بس ڈپو کی تعمیر کے لیے زمین ٹرانس کراچی کے حوالے کر دی ہے. بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے حوالے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات کے موقع پر سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ بھینس کالونی میں بایو گیس پلانٹ کی تعمیر کے لیے زمین مختص کر دی ہے. کے ایم سی جلد یہ زمین ٹرانس کراچی کے حوالے کر دے گی. پروجیکٹ میں جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے. سندھ حکومت بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی خواہاں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے حال ہی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں شروع کیے گئے کامیاب منصوبوں سے شہری خوش ہیں. سندھ حکومت اپنے شہریوں کی توقعات کے مطابق اقدامات کر رہی ہے. کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کی سہولت جلد از جلد فعال ہو. شرجیل انعام میمن نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کو کراچی میں اپنا کیمپ آفس قائم کرنا چاہیے تاکہ پروجیکٹ کے روزانہ کے معاملات حل ہو سکے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر اربن اسپیشلسٹ لائٹ رائٹ کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ میں حال رکاوٹوں بالخصوص کے الیکٹرک انسٹالیشن کی نشاندہی کی. محکمہ ٹرانسپورٹ بالخصوص وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے پروجیکٹ کو بھرپور وقت دیا ہے جس سے پروجیکٹ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک سندھ حکومت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہر ممکن تکنیکی معاونت اور تعاون جاری رکھے گا. اس موقع پر سینئر آپریشنز مینیجر لیزا جین, سینئر پروجیکٹ آفیسر شوکت شفیع, پروجیکٹ کوارڈینیٹر طاہر شیخ, کنسلٹنٹ صادق آفتاب, سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبد الحلیم شیخ, ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی زبیر چرنا, جی ایم انفراسٹرکچر ٹرانس کراچی پی سجاد اور دیگر بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی شکیل احمد کہتے ہیں کہ ضلع شرکی کی بہتری کے حوالے سے ضلع شرکی کی حدود میں موجود دیگر اداروں کے سربراہان سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی شکیل احمد کی ڈی جی کے ڈی اے سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی شکیل احمد کا کے ڈی اے کی حدود میں آنے والے علاقوں کے بلدیاتی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں. ضلع شرکی میں ڈی ایم سیز کے علاوہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے اشتراک عمل سے شہریوں کے مسائل دور کیے جائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع شرکی کی بہتری کے لیے ضلع شرکی میں موجود ہر ادارے سے بات چیت کریں گے. اداروں کے باہمی اشتراک کے ذریعے ضلع شرکی کے بلدیاتی مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے. اداروں کے باہمی اشتراک سے ہر مسئلے پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ نے انہیں یقین دلایا کہ ضلع شرکی میں موجود کے ڈی اے کے زیر انتظام آنے والے علاقوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا. اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر توقیر عباس, سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو, ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈی ایم ارشاد علی, انچارج ڈیپٹیز ریموول راؤ شمشاد اور کے ڈی اے کے افسران بھی موجود.
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान कहते हैं कि अशफाक मल्ला एक तजुर्बेकार ऑफिसर हैं जो अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से बल्दिया कोरंगी की कारकर्दगी को चार चांद लगा सकते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला की तारुफी मीटिंग से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान ने कहा कि हम सब मिलकर जिला कोरंगी को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें तो अपने जिले को कराची का बेहतरीन जिला बना सकते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला का कहना था कि हम सब एक टीम है और एक टीम बनकर एडमिनिस्ट्रेटर का बाजू बनना है। इनको अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से भरपूर सपोर्ट करना है ताकि टीम वर्क से जिला कोरंगी को बेहतरीन जिला बनाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि तामीराती अमल में बदलते वक्त के साथ जरूरियात के तहत तब्दीली आई है। सरकारी सतह पर भी इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। गडाब के इलाके में सड़क के तामीराती अमल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल नूर हसन जोकियो का कहना था कि अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी मनसबी जिम्मेदारी है। इसमें जिद्दत से मजीद बेहतरी आया होने के साथ मसाइल में कमी भी वाकई पेश हुई है, जबकि अहले इलाका के वो मसाइल जो हमारे इदारे से वाबस्ता हैं उनको मुकर्रर वक्त पर हल कराने की काविश कर रहे हैं। इलाके की खुशहाली हमारा मिशन है जिसके लिए अपना 100% दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि थोड़ी सी तवज्जो से प्रोजेक्ट मिसाली तैयार होता है। मैं अपनी टीम के हमरा जहां हर समत में अहलियान को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहा हूं, वहीं इस तरफ भी मेरी तवज्जो भरपूर है। जहां तक मुमकिन है दौरे हाजिर के मुताबिक हर काम की तकमील होगी। इस मौके पर उनके हमरा चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, अफसर आला मालियात इफ्तिखार डायो और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ शामिल करेंगे अदालती खबर। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची एयरपोर्ट के अतराफ कचरे का ढेर और कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात का केस। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की गैर हाजिरी के बायस समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर PIA, सिविल एविएशन और दीगर से तफसीली जवाब जमा तलब कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची एयरपोर्ट के अतराफ कचरे का ढेर और कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात का केस है, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त गुजार की गैर हाजिरी के बायस इस समाअत को 21 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा समाअत पर PIA, सिविल एविएशन और दीगर से तफसीली जवाब तलब कर लिया गया। शहर कराची के इलाके हॉक्स बे पर 250 एकड़ जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ये मामला है, जबकि शहरी शाकिरुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। KPT ने 2006 में हॉक्स बे पर 250 एकड़ एराजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुख्तस की। मैं अपनी जायदाद बेचकर मैंने 5 प्लॉट्स खरीदे हैं, जबकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमीन अपनी असल हालत में तब्दील करने का हुक्म दे दिया था। जमीन वापस KPT के कब्जे में चली गई, लेकिन हमारी रकम वापस नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, जबकि अदालत ने दरख्वास्त पर KPT को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन है। ऐसे में KMC एंटी इंक्रोचमेंट खासा मुतहरिक दिखाई देता है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई करते हुए टीपू सुल्तान रोड पुल के नीचे फलाही इदारों की जानिब से कायम किए गए खाने के दस्तखान को हटवा दिया है, जबकि नाज़िमाबाद गोल मार्केट और अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ भी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है।
KMC एंटी इंक्रोचमेंट का अमला खासा मुतहरिक दिखाई देता है। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर 24/7 24 घंटे जारी हैं, जिस पर जो है वो डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत भी खासा मुतहरिक हैं और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर हिदायत है कि तजावुजात का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए। ज़मन में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई की है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, कहिएगा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आज कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे रोजाना की बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की हिदायत पर यह कार्रवाइयाँ की जाती है रोजाना, और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लैंड इमरान अहमद राजपूत इसकी निगरानी करते हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजमाबाद डिवीजन है, नाजमाबाद गोल मार्केट और अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। यहाँ रोड और फुटपाथ पर सामान रखा था जिसे उठा लिया गया है। रेस्टोरेंट था जिसमें कुर्सी टेबलें वगैरह जो है फुटपाथ पर डाली हुई थी, जहाँ से लोग जो है गुजरना उनका मुश्किल हो गया था, जिसके बायस जो है वहाँ कार्रवाई की गई है। इसी तरह दूसरी कार्रवाई हमने देखा कि नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक के एसेट मार्निंग सोसाइटी है, वहाँ भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और हेवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात को जो है मस्मार किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है ये जबसे डिवीजन में हिल पार्क कश्मीर मार्केट के अतराफ, वहाँ भी तजावुजात थी, शिकायत थी, अवामी शिकायत के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ की गई है, जिसके बाद जो है वहाँ पर रखा सामान और जो गैर कानूनी तौर पर चीजें रखी थी उनको जब्त कर लिया गया है। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल के मकामात पर जो है ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, और ये कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर तो की जाती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो इसमें रुकावट का बायस भी बनते नजर आते हैं। लेकिन जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, उनकी हिदायत पर अमला अपने कार्रवाइयाँ करता है, और उसके अंदर जो है हम ये देखते हैं इस कार्रवाई की सूरत में जो है मुख्तलिफ इलाके साफ भी हो जाते हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर दोबारा भी सामान रख दिया जाता है और फिर जो है इदारे दोबारा कार्रवाई करते हैं। तो इस मुख्तलिफ इदारों का टकराव भी इस मामले में ऑपरेशन में नजर आता है। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि ये भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि अहम शाहराहें जो हैं वो लाखों रुपए में फरोख्त कर दी गई हैं। जी हाँ, देखें इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो शाहराहें हों या फुटपाथ हो, वहाँ पर ये एक तरफ ऑपरेशन होता है, दूसरी तरफ इसमें सबसे बड़ी जो मुलव्विस नजर आती है वो पुलिस नजर आती है। पुलिस जो है ऐसे मकामात पर ऑपरेशन को नाकाम बनाने में अपना अहम किरदार अदा इस तरह भी करती है कि ऑपरेशन होने से पहले जब इनको इत्तला की जाती है सिक्योरिटी के लिए, तो ये पुलिस की तरफ जानिब से उनको मुत्तला कर दिया जाता है, वहाँ से सामान हटा लिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ सामान वहाँ पर जरूर होता है जो कि कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जो है क्योंकि इत्तला कर दी जाती है तो सामान वहाँ से हटा लिया जाता है, लेकिन पुलिस जो है फिर क्योंकि वहाँ पर जो इस ऑपरेशन को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करती नजर आती है, तो दोबारा भी जो उनके आशीर्वाद की वजह से वहाँ चीजें ये कायम हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी हद तक सदर के इलाके की अगर हम बात करें तो माजी में हम देखते थे कि फुटपाथ के एम्प्रेस मार्केट के सामने से लगे रीगल तक जो है ये पट्टी पूरी जो है 3-3 रो इसकी बनी होती थी, कब्जा हुआ होता था, लेकिन अब हर दूसरे दिन जब ऑपरेशन होता है तो वो चीजें क्लियर नजर आती हैं। अब एक बड़ा माफिया है जो कि सर्दियों का मौसम आता है तो तजावुजात कायम करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि जिन्हें लुंडा बाजार आम जबान में कहा जाता है पुराने कपड़े बेचने वाले, वो ठेले लेके जो है आप देखते हैं कि बोर्ड ऑफिस की तरफ पूरी मार्केट की सूरत इख्तियार कर ली गई है, वहां पर ऑपरेशन किया जाता है, वो ठेले लेके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर आ जाते हैं। तो अब मुताल्लिका ऑपरेशन की इंतजामिया यही कहती नजर आती है कि हम तो अपने तौर पर वहां पर ऑपरेशन करते हैं, हिकमत अमली अपनाते हैं, लेकिन हर वक्त तो वहाँ मौजूदगी को नहीं जो है बना सकते। यही वजह है कि मुख्तलिफ इदारे उसमें DMCs भी हों, पुलिस भी हो, सियासी जमातों के लोग भी हों, वो भी जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे शहर कराची के अंदर इस ऑपरेशन के अंदर, तो यकीनन जो एक KMC की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर मुश्किलात का सामना इन्हें जरूर करना पड़ेगा। जी
अच्छा हफीज अंसारी, ये जो गैर कानूनी ठेले पथारे कायम कर दिए जाते हैं, हर थोड़े दिनों के बाद तजावुजात का सफाया कर दिया जाता है, फिर से ठेले पथारे कायम हो जाते हैं। ठेले पथारे माफिया का भी ये कहना है कि हम डीएमसी और केएमसी दोनों को रिश्वत दे रहे हैं। जी, अगर वो रिश्वत दे रहे हैं तो फिर उसके बाद भी यानी कि अगर उनको उठा के ले जाया जाता है तो फिर वो उनको खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये पैसे देने की भी बात करते हैं तो इनके खिलाफ फिर एक्शन भी हो रहा होता है, कार्रवाई भी हो रही होती है। तो मुख्तलिफ लोगों को ये पैसे जरूर देते हैं जिसकी वजह से इनके ठेले जरूर वहाँ पे कायम होते हैं और दुकान वाले भी परेशान नजर आते हैं कि उनकी दुकान जो कि लाखों रुपए की होती है और हजारों रुपए किराए पे दुकान होती है, लेकिन उस दुकानों के आगे जो ये ठेले और पताले डाल के बैठे होते हैं और इस यानी कि आजादी के साथ बैठे होते हैं कि दुकान वाले अगर कोई बात करे तो उसके ऊपर जो है वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो शहर के अंदर हम देखते हैं कि जरूर नजर आती है। तो जाहिर है जब आशीर्वाद इनको होती है तो उसी सूरत में जो इतनी आजादी के साथ जो है दुकानदारों से या दूसरे लोगों से भी झगड़ते नजर आते हैं। लेकिन कार्रवाई खबर वो कोई भी हो उसके खिलाफ होनी चाहिए और कार्रवाई ना होने की वजह ये है आला सतह पे जो है वो भी लोग जो इसके अंदर जाहिर मुलविस होंगे तो जिसकी वजह से कोई ना कोई कोताही नजर आती है। तो मुख्तलिफ इदारे हों जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो यकीनन जो है वो जो नताइज बरामद होने चाहिए ऑपरेशन के नतीजे में वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये फिर भी एक खौफ और राज जरूर इस वक्त हम देखते हैं कि ऑपरेशन की वजह से नजर आता है कि लोग जो मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कम अज कम जगह को बढ़ाए। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि डीएमसी केएमसी के साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट का जो अपना अमला है वो भी इन सब चीजों में मुलविस पाया गया है क्या? देखिए अपना तमाम चीजें यानी कि वो जाहिर है मुश्तरका मिली भगत से हो रही है। बिल्कुल जी, देखें कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पासा हो, साफ सुथरा हो और तमाम ही लोग अच्छे हों। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और जहाँ अच्छे काम करने वाले होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, जिनकी वजह से ही ये चीजें जो है वो खराबी जो है उसमें खत्म नहीं हो पाती है, सुधार नहीं आ पाता है। यकीनन जो है ये सुधार इसी वजह से नहीं आता है कि ये भी के अंदर जो है लोग मुलविस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो ऑपरेशन होते हैं अचानक उससे पहले ही उनको इत्तला मिल जाती है और जो कब्जा माफिया होती है वो वहां से अपना सामान जो हटा लेती है तो ऑपरेशन जो है नाकाम हो जाते हैं। यकीनन जो है इस किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट भी पाई जाती है ऑपरेशन के दौरान जो कि नाकामी से जिसकी वजह से ये दो चार होते हैं और इसके अंदर जब तक आला सतह पर लोग जो है सही नहीं होंगे तो यकीनन जो है निचली सतह तक काम जो है बेहतर अंदाज में नहीं हो पाएगा। तो एक हम देखते हैं कि शहर के अंदर जरूर ऑपरेशन हो रहा है लेकिन ऑपरेशन को 100% जो नताइज बरामद होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, देखा जाता है कि एक ही शाहरा अंदरूनी हो चाहे वो अहम शाहरा हो वहाँ से तजावुजात का खात्मा हो जाता है और फिर 1 से 2 दिन के बाद वहाँ पे वैसे ही तजावुजात की भरमार होती है। तो क्या समझते हैं, क्या ये फिर नुमाइशी ऑपरेशन तो नहीं है? जी देखिए ऑपरेशन यानी कि अगर जो ये करते हैं अगर ये नुमाइशी ऑपरेशन भी ना करें तो यकीनन जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो कोशिश की होती है कि भाई ऑपरेशन के बाद किसी हद तक जो है वहां से चीजें हट जाए और अगर यानी कि ऑपरेशन जैसे शहर के अंदर मुख्तलिफ हम देखते हैं कि इदारे हैं वो अगर कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमें नहीं नजर आता उनके ऊपर कोई ऐसा यानी कि उनको उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही हो कि काम करने पर उनको मजबूर किया जा रहा हो। तो यकीनन जो है अगर ये भी केएमसी भी इस किस्म की कार्रवाई करती है कि कार्रवाई करने के बाद दोबारा वहां पर चीजें जमा हो जाती है तो यकीनन जो इनकी अपनी भी कोताही है या अपना भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डीएमसीज की तो डीएमसीज ने भी एंटी इंक्रोचमेंट का एक अमला बनाया हुआ है। डीएमसीज के पास कानूनी कोई इख्तियार नहीं है एंटी इंक्रोचमेंट का काम करने का या उठाने का, लेकिन उन्होंने बाकायदा जो है चालान दिए हुए हैं बनाकर के मुख्तलिफ फुटपाथ के ऊपर मुख्तलिफ गैर कानूनी जगह पर जो है वो चालान जो है कब्जा करने के वहां पर पथारा डालने के बना के दिए हुए हैं। तो इस किस्म का टकराव होता है केएमसी और डीएमसी के दरमियान, एक उठाता है दूसरा लगवाता है या डीएमसी उठाती है तो केएमसी लगवाती है। इस किस्म की तजादात जो है ये मुकम्मल तौर पर जो इसके ऑपरेशन के अंदर जो यकीनन रुकावट बनते हैं। तो सबसे बड़ी सियासी जमातों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मुख्तलिफ तंजीमों की, मुख्तलिफ इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है। हर शख्स जो है वो बाइख्तियार नजर आ रहा होता है, एक पथारेदार बजाय जो पथारेदार नजर आ रहा होता है
لیکن اس کے اثر و رسوخ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منسٹر تک یا اہم سیاسی جماعت کے عہدیداران تک ہوتے ہیں. تو یقیناً جو ہے ان کے خلاف پھر کارروائی ایک دفعہ اٹھنے کے بعد جو ہے دوبارہ لگ جانا اس کے اثر و رسوخ کی وجوہات بھی ہوتی ہے. جی حفیظ انصاری ہمیں تفصیلی تمام تر صورتحال بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. ڈسٹرکٹ کیز گلشن اقبال ڈویژن میں واقع ٹیپو سلطان روڈ پل کے نیچے فلاحی اداروں کی جانب سے قائم کیے گئے کھانے کے دسترخوان کے خلاف کارروائی کی گئی. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی. ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد ڈویژن ناظم آباد گول مارکیٹ اور عباسی شہید اسپتال کے اطراف تجاوزات کے خلاف ایک بار پھر آپریشن کیا گیا، جہاں آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم کر لی گئی تھی. متعدد سامان ضبط کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی. کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی نے کی. جمشید ڈویژن میں ہل پارک کشمیر مارکیٹ کے اطراف عوامی شکایات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. روڈ فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا. کارروائی میں ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ کیس خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے حصہ لیا. تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی. ڈسٹرکٹ کیس گلشن. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی اداروں کی ناقص حکمت عملی سے قومی خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا چونا لگنے لگا ہے. نامکمل ترقیاتی کاموں کے درمیان سڑک کی استرکاری کر کے قومی وسائل کا ضیاع کیا جا رہا ہے. نامکمل ترقیاتی کاموں کے درمیان سڑکوں کی تعمیر کو عوام نے قومی خزانے پر بوجھ قرار دے دیا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ پیپلز بس سروس پروجیکٹ کے لیے ٹریک کی تکمیل کے دوران سڑک پھر تباہ و برباد ہو جائے گی. سیوک سینٹر کے سامنے سال میں متعدد بار سڑک کی استرکاری فائلوں کا پیٹ بھر کر قومی خزانے کو چونا لگانے کے مترادف ہے. بلدیاتی اداروں کی ناقص حکمت عملی سے قومی خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا چونا لگنے لگا. کے ڈی اے کے ایم سی ڈی ایم سیز کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے درمیان رابطوں کے فقدان کے باعث انفراسٹرکچر دن بدن تباہ و برباد ہونے لگا. کراچی میں سڑک کی استرکاری کے بعد پانی اور سیوریج لائن کی تنصیب کے نام پر سڑک کا کھودنا معمول ہے، تو دوسری جانب نامکمل ترقیاتی کاموں کے درمیان سڑک کی استرکاری کر کے قومی وسائل کا ضیاع جاری ہے. عوام نے یونیورسٹی روڈ سیوک سینٹر کے سامنے سڑک کی استرکاری کو قبل از وقت قرار دے کر قومی خزانے کو چونا لگانے کے مترادف قرار دے دیا. شہریوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ پیپلز بس سروس کے ٹریک کا کام جاری ہے. اس دوران سڑک کی استرکاری کر دی گئی. پروجیکٹ کی تکمیل کے دوران سڑک پھر تباہ و برباد ہو جائے گی، جس کے بعد دوبارہ اس کی استرکاری کے لیے وسائل کو ٹھکانے لگانے کا مقصد پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا، جو کہ سراسر زیادتی ہے. سڑک دلی ہے، پھر اس کے بعد ابھی گرین بس کا ٹریک چلے گا، پھر ٹوٹ جائے گی، یہ پھر بنے گی. عوام کے ٹیکسی سے پیسے بار بار لگ رہے ہیں، عوام کی کوئی سہولت نہیں. روڈ مٹیریل یہ 2 نمبر مٹیریل ہوتا ہے. تو بارش ہوتی ہے تو بس اگر یہ بنا لیتے ہیں 1 مہینے کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، پرانا حال ہوتا ہے. 10 دفعہ پہلے بھی بن چکا ہے. تو عوام نے یونیورسٹی روڈ پر پیپلز بس سروس روٹ کی تکمیل سے قبل ہونے والی سڑک کی استرکاری کو مسائل کے ضیاع کا سبب قرار دیا. عوام کا کہنا ہے کہ سیوک سینٹر کے سامنے سال میں متعدد بار سڑک کی استرکاری فائلوں کا پیٹ بھر کر قومی خزانوں کو چونا لگانے کے مترادف ہے. قوم کا تو پیسہ ضائع ہو ہی رہا ہے، شروع سے لے کر اب تک جو بھی بیٹھ رہا ہے پیسہ ضائع کر رہا ہے، کھا رہا ہے. یہ سڑک بن رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. گرین بس کا یہ ٹریک بنے گا، اس کے بعد بھی ٹوٹے گا، پھر ضائع ہوگا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم لوگ غریب زندہ ہیں. کراچی کے باشعور باسیوں نے صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اداروں کے درمیان باہمی رابطے بحال کر کے ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے، تاکہ ترقیاتی کاموں کے دوران قومی وسائل کے ضیاع کی روک تھام ہو سکے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر یوسف گوٹ میں سیوریج لائن کی تنصیب کے کاموں کا آغاز ہو گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی یوسف گوٹ میں سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات. دیرینہ مسئلہ حل ہونے پر یوسف گوٹ کے مکینوں نے سندھ حکومت سے اظہار تشکر کیا.
कराची के इलाके सुरजानी यूसुफ गोट में सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी इकदामात का आगाज हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर यूसुफ गोट मुर्तजा चौक में सीवरेज लाइन की तनसीब का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। पीपल्स पार्टी के मुकामी ओहदेदारान का कहना था कि सीवरेज इस इलाके का देरीना मसला था। बारिशों में नकासियाब का निजाम बैठ जाता था, जिससे मकीनों का यहाँ रहना किसी अजाब से कम नहीं था। अवाम के देरीना मसले को हल करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जिनकी खुसूसी तवज्जो से सीवरेज लाइन की तनसीब के कामों का आगाज हुआ। ये वार्ड 3 यूसुफ गोड शहीद भुट्टो चौक से लेकर पाकीज़ा बेकरी तक अल्हम्दुलिल्लाह 36 की लाइन का काम था, जो पाए तकमील तक 50% पहुँच गया है। तमाम मैनहोल्स बन रहे हैं। जो आवाम थी यहाँ की काफ़ी आपने देखा होगा बरसातों में, और जब भी पानी आता था सैलाब का तो ये हमारा इलाका बहुत डूबता था और काफ़ी जो है नुकसान का शिकार होता था। आज ये हमने 36 वाया की लाइन डली है, जो कि हमारा दरीना मसला था। जब से ये यूसुफ गोट आबाद हुआ था, ये यहाँ झील का टुकड़ा कहलाता था और पूरे पहाड़ का पानी आके यहाँ जमा होता था, तो कोई भी घर नहीं बचता था, सारे डूब जाते थे। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ गोट के गरीब आवाम के लिए एक पैकेज लॉन्च किया जो 80 करोड़ का था। इंशाल्लाह बस ये मसला था पानी का, सीवरेज का बहुत निज़ाम ख़राब था। जब भी बारिश होती थी लोग बहुत परेशान होते थे। इतने पानी में भी आधी कमर जितने पानी में भी शाहिदा रहमानी आई है, निसार साहब आए, अली अहमद जान आए और वकार मेहंदी आए, नासिर शाह आए, सब आए। सब ने रिजल्ट देख के हमने बिलावल चेयरमैन ने हमारा ये हल कर दिया मसला। यूसुफ गोड मुर्तजा चौक और अतराफ के मकीनों ने सीवरेज लाइन की तनसीब को सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम करार देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार तशक्कुर किया। तो दूसरी जानिब आपको बताते चले कि महकमा सेहत सिंध की गफलत और लापरवाही के बायस अब्दुल रहीम गोड डिस्पेंसरी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। अब्दुल रहीम गोड डिस्पेंसरी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गई है। बच्चों ने तबाहाल डिस्पेंसरी के मुज़र सेहत माहौल में खेल कूद को मशगला बना लिया। तिब्बी मराकज़ में झूले नस्ब करके ज़रूरतमंद अफराद रोजगार कमाने लगे हैं। रात के औकात में डिस्पेंसरी नशे के आदी अफराद का मस्कन बन गई है। सैकड़ों की तादाद में नशे के आदी अफराद डिस्पेंसरी को नशा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। महकमा सेहत सिंध की अदम तवज्जुही के बायस कराची के बासी तिब्बी सहूलियात से महरूम होने लगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कायम अब्दुल रहीम गोड डिस्पेंसरी महकमा सेहत के अफसरान की गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अब्दुल रहीम गोड डिस्पेंसरी तिब्बी सहूलियात से महरूमी के बाद कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गई। बच्चों ने तबाहाल डिस्पेंसरी के मुज़र सेहत माहौल में खेल कूद अपना मशगला बना लिया। तिब्बी मराकज़ में झूले नस्ब करके जरूरतमंद अफराद रोजगार कमाने लगे हैं। कुर्बो जवार में रिहाइश पजीर बच्चों ने डिस्पेंसरी को क्रिकेट के मैदान में तब्दील कर दिया। रात के औकात में अब्दुल रहीम गोड डिस्पेंसरी नशे अफराद का मस्कन बन गई और सैकड़ों की तादाद में नशे के आदी अफराद डिस्पेंसरी को नशा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि इलाके में मनशियात फरोशी के कारोबार का सबब भी बन रहा है। अवाम का कहना था कि डिस्पेंसरी की खस्ता हाली के बायस यहाँ के मकीनों को दूर दराज महंगे निजी अस्पतालों और क्लिनिक में इलाज की गर्ज से जाना पड़ता है, जो जेब पर भारी बोझ का सबब बन रहा है। इधर कोई इसका वही वारिस है नहीं अल्लाह के सिवा। इसका तो क्या पूरे गोट का वही वारिस नहीं है। ये हमारा ऐसे ही चल रहा है, निज़ाम अल्लाह के उससे चल रहा है। ना कोई इधर को फंड मिलता है, ना कोई देता है। जो है तो ये तकरीबन 2-3 साल से ये हमारे रास्ते ये ऐसे समझो डूबे हुए हैं। कराची वेस्ट में खड़े हैं डिस्पेंसरी के अंदर, जो ये किसी दौर में 1994 में इसका बुनियाद रखा था हमारे MPA लाल बख्श भुट्टो ने, जो कि तकरीबन 8 साल पहले तक ये डिस्पेंसरी यहाँ काम अपना कर रही थी। डॉक्टर आ रहे थे, नर्सिंग आ रही थी और अहलियान अब्दुल रहीम गोट इससे फ़ायदा ले रहे थे। अहलियान अब्दुल रहीम गोट नहीं, यूसुफ गोट, सदीक गोट, अब्दुल रहीम गोट, नासरी गोट और अब्दुल रहीम गोट, ये पांचों गोटे इस इलाके में गरीब आवाम इससे फ़ायदा ले रहे थे। आज वो जगह है हिरोंचियों का गढ़ बना हुआ है, आज वो जगह है दहशत गर्दों का गढ़ बना हुआ है। कार्रवाई करके आके इन कमरों में छुपते हैं। यहाँ से कचरा उठाया जाए। यहाँ टैंक के अंदर एक बच्चा गिर के जो है ना मर भी चुका है यहाँ पे।
यहाँ पे सारा कचरा गंद ये सब चीज़ें उठाई जाए। हमारी बिलावल भुट्टो साहब से अपील है कि वो इनको हिदायत करें कि ये सब चीज़ों का निज़ाम अच्छा करें, दीवारें बनाएं। 4-5 साल 6 साल पहले जो है ये गेट वेट उखाड़ के ले गए, सारा हीरोनचीफ का घर बन गया है। मेहरबानी करके अपील है कि जो भी अमलदार, दखलदार, नाज़िम साहब, नायब नाज़िम या आगे ऊपर जो भी बैठे हुए हैं, हमारे बिलावल भुट्टो तक या जरदारी साहब हैं, तो ये गांव के लिए बहुत गंद हो चुका है। अब्दुल रहीम गोट के मकीनों ने डिस्पेंसरी को मुकम्मल तौर पर फाल करने का मुतालबा करते हुए सिंध हुकूमत से अपील की है कि डिस्पेंसरी को तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि यहाँ मुकीम हजारों अफराद को घर की दहलीज पर बेहतर से बेहतर इलाज और मुआलजे की सहूलियात मैसर आ सके। बात करेंगे बल्दिया आला कोरंगी के पार्क्स की जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। बल्दिया कोरंगी के मुतादिद तफरीही पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आपको बताएं कि घास की जगह मिट्टी के ढेर और कियारी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। कोरंगी नंबर 2 का फैमिली पार्क भी बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की आदम तवज्जुही के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया, जबकि पार्क में आवाम के लिए बैठने का ना कोई खास इंतजाम रहा और ना ही आवाम की चहलकदमी के लिए साफ सुथरा माहौल मैसर है। पार्क में तफरीही सहूलियात के फुकदान के बाइस आवाम ने पार्क आना तर्क कर दिया। कोरंगी नंबर 2 का फैमिली पार्क भी बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पार्क में आवाम के लिए बैठने का ना कोई खास इंतजाम रहा है, ना ही चहलकदमी के लिए साफ सुथरा माहौल बाकी बचा। पार्क में तफरीही सहूलियात के फुकदान के बाइस आवाम ने आना तर्क कर दिया। ये बन ही नहीं रहा भाई, यहाँ जो है ना चरसी मवाली इन लोगों के डेरे हैं, समझे, और खुली आम चरसे बिक रही हैं, बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं। बनना चाहिए, साफ सुथराई होनी चाहिए, हर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। अब खाली कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, वो कचरा ले आती हैं बस, लेकिन अभी इतना गंद पड़ा हुआ है जगह जगह। सेवरेज का इतना मसला है, गटर लेने बह रही हैं जगह जगह। पहले इलाका ने शिकवा किया है कि कुछ अरसे कबल पार्क बैठने के काबिल हुआ करता था, ताहम महकमा बागात ने पार्क को लावारिस छोड़ दिया है, जिसके बाद से ये पार्क नशे अफराद के मरकज में तब्दील हो गया है। पार्क तो बहुत टाइम से खराब है। तकरीबन ये लोगों ने मनशायत का अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन सब लोग मनशायत के लेकर आते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। लोगों ने कचरे का ढेर बनाया हुआ है, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला इसको नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। बच्चे पूरे स्कूल में खेलते हैं, कौन सी जगह नहीं है खेलने की, पढ़ भी रहे हैं, फेल भी रहे हैं। गंदगी देखो कितनी है, लोगों ने कचरे कूड़े का ढेर लगाए हुए, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। ये तो अमूमन मोहल्ले वाले खुद ही अपनी मदद आपके तहत झाड़ियों वगैरह को जला के और उसको जगह को कुछ ना कुछ क्लियर करते हैं, उसी के अंदर बच्चे खेल लेते हैं गंदगी के अंदर। आए दिन नई से नई बीमारियां उठ रही हैं, यहाँ से कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ जाते हैं, अगर एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ भाई सेवरेज का मसला है, आप भंगियों को भेज दें। अब यहाँ पे यूसी के अंदर अगर 12 भंगी हैं तो मौजूद वहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं, और उन 2 की भी डिमांड इतनी होती है, बंदा प्राइवेट लेकर आ जाए, वो सस्ते पड़ते हैं, बजाय इसके कि वहाँ एप्लीकेशन देके उनको लेकर आया जाए। यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क को तफरीही सहूलियात से आरास्ता करके यहाँ की रौनकें बहाल की जाएं और पार्कों की देखभाल के लिए महकमा बागात को मुनासिब इंतजाम का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान के मौशी हब और सबसे बड़े शहर में सड़कों की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। जिम्मेदार इदारों ने चुप कर रोजा रख लिया है। तरक्याती कामों के नाम पर मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद की सड़क कई साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न की जा सकी। कराची में सड़कों की खस्ता हाली और ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना कड़ा इम्तहान बन गया। मिनटों का सफर अब घंटों में तब्दील हो गया। काला बोर्ड से सौदाबाद चौरंगी तक सड़क की तामीर, नकासी आब के निजाम और बरसाती नाले की बहाली और पानी की नई लाइनें डालने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि काम मुकम्मल न होने से यहाँ के कारोबारी अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया। ऊंची नीची सड़कों से सफर करने से गाहक कतराने लगे हैं। कारोबार न होने से नौबत
हुकूमत फाका कशी तक पहुँच गई। हालात से तंग यहाँ के कारोबारी अफराद मेट्रो वन न्यूज के सामने फट पड़े। कहते हैं मुतादिद बार इंतबा के बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं करवाई गई। रोजाना घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी बात बताऊं, कराची शहर माशाल्लाह से रोशनियों का शहर है। इस शहर का आज से नहीं, आज से तकरीबन जब से मैं जवान हुआ ना, मैं इस शहर का यही हाल देख रहा हूँ। अब ये देखें, किसी का कारोबार है, उसकी दुकान है, उसकी दुकान के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं पीछे इतना बड़ा गड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मतलब कोई तकलीफ में अगर यहाँ से राहगीर गुजर रहा है, खुदा न खास्ता रात में गिर जाए, अंधेरा है, खड्डा हुआ है, इस खड्डे को तकरीबन, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, इस खड्डे को तकरीबन मैं 2 माह से देख रहा हूँ, 2 माह से इसी पोजीशन में। खुदारा कराची का ख्याल करें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, आवाम के लिए बेहतरी की तरफ निकलें। एक जगह खड्डा होता है तो वो मुसलसल खड्डा रहता है। इस गड्ढे को खुदे हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं और इस गड्ढे को खुदा था, इसके अंदर सेवी लाइन भी टूटी हुई है हमारी, सही है, और पानी की लाइन है वो भी टूटी हुई है हमारी इसके अंदर। इस खड्डे को तकरीबन 2 महीने हुआ खुदे, और इसी खड्डे के अंदर एक मौत भी हो चुकी है। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ से आने जाने का रास्ता है, आवाम यहाँ से आ रही है, गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से आते हैं, मदरसे के बच्चे यहाँ से आते हैं, वो सब बीच रोड में तो गुजरते हुए आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी तो खैर एक मौत हुई है इसके अंदर, खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को एक्सपायर हो जाए, कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि सिंध गवर्नमेंट से कि इस खड्डे को बंद करा जाए, सर्विस के निज़ाम को सही करा जाए, पानी के निज़ाम को सही करा जाए इस गली के अंदर, ताकि पानी आज जब लाइन टूटी है तो पानी कैसे आएगा? पानी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, तो लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस खड्डे को जल्द से जल्द बंद करा जाए। उनका कहना था कि दुकानों के आगे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जबकि धूल मिट्टी से हम सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे। यही है कि ये गलत है, मतलब हमारा सारा जो गर्द गुबार डस्ट जो हमारे मुंह सांसों में आ रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। माल को दिन में 2-2 3-3 दफा साफ करना पड़ रहा है, हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। पार्टी आती है आके जो दूर से ही चली जाती है, माल सब गंदा होता है, तो देखने में वाले ये समझता है पता नहीं कब का पिछले साल का रखा हुआ है, फ्रेश माल होता है, फिर भी जो कहते हैं यार नहीं ये पुराना माल है। बहुत असर पड़ा है भाईजान, हमारा कारोबार बिल्कुल खत्म। ये गड्ढा हमने अपने हाथ से भरा है, कोई भी नहीं आया इसको भरने, सही है ना, ना कोई आएगा। जो खुदाई करी है वो छोड़ के चले गए, सही है ना। अब ये देखिए, आप जो करवाना चाहते हैं उसको करवाएं अच्छी तरीके से, काम वैसे ही नहीं है, हालात देख रहे हैं आप, महंगाई कहाँ चली गई है, करवाएं इसको। लोग भी मर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गंदगी देखें आप खाली। दुकानदारों ने नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान से मुतालबा किया कि यहाँ की सड़क की तामीर फौरी शुरू की जाए ताकि हमें कारोबार करने में आसानी हो। शहर कायद में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं और जगह जगह खुदाई से उड़ने वाली धूल मिट्टी गर्द गुबार से शहरी सांस दमा और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती काम बद इंतजामी उमूर के बाद शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम न सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है, वहीं हर गुजरते दिन के साथ शहरियों के लिए वबाल जान भी बनते चले जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बेवक्त वक्त पूरे शहर को खोद दिया गया है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरा घर यहाँ 1 किलोमीटर पर है, मैं अपने घर से यहाँ तक पहले आता था 5 मिनट में आ जाता था, अब मुझे 1.5 घंटा लगता है अपने घर जाते हुए और आते हुए, समझ रहे हैं। और यहाँ आप रोड देख सकते हैं, ये तरक्याती काम है, आपके सामने ही है। ये एम्बुलेंसें रश में फंसी हुई हैं, पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो, ये एम्बुलेंसें, सामने हॉस्पिटल, पूरा शहर जो है, ये कराची का सेंटर है, मेन यूनिवर्सिटी रोड है, पूरा शहर खोदा हुआ है। इन्होंने मेहरबानी करें, जो काम इन्होंने शुरू किया है इसको अपने मकाम पे पहुँचाएं, एंड करें इसका। मरीर हॉल से सफूरा आने वाली मरकजी सड़क हो या यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर हो या नॉर्थ नाजाबाद से नया नाजबाबाद तक जाने वाली मारूफ शाहरा, तमाम पर ट्रैफिक सुबह सपहर, शाम और रात के औकात में पैक नजर आता है, जो हुकाम वाला की मौजूदा कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।